गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप करेंगे बोहर्स एटम मॉडल। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। ये बहुत कुछ मतलब सॉल्व करना आ, रेडियस कढ़ना आ, ਉਹਦਾ ਐਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਯੂ ਹੈਵ 2 days ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੋਹਰ ਐਟਮ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਟਮ ਸਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ? ਬੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਲਾਈ? ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਪਲੈਂਕ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਮਤਲਬ ਪਲੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਟਮ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮਸ ਦਾ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਹਰ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਡਰੋਬੈਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੋਹਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਬੋਹਰ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕਰਤੀ? ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ h/2π। ਠੀਕ ਹੈ, h/2π ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ E ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸੀ, Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N ਹੀ, ਉੱਥੇ E ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ E ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ h/2π। h/2π ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? mvr। ਸੋ mvr ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ nh/2π। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਔਰਬਿਟ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਔਰਬਿਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਔਰਬਿਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲੇ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਔਰਬਿਟ ਲਈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਸ ਔਰਬਿਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ h/2π ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਲੋਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਗੇਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ।
ठीक है, वो डिपेंड करता है। पर एक जिथे आ वाली कंडीशन सैटिस्फाई होंदी पई है उस ऑर्बिट दे विच इलैक्ट्रॉन नूं रिवॉल्व करन वास्ते ना कोई एनर्जी जिहड़ी है वो लूज़ करन दी जरूरत है, ना ही गेन करन दी जरूरत है, जिन्हां नूं आपां इन्हां जिहड़े स्टेशनरी स्टेट्स ने इन्हां नूं आपां एनर्जी लैवल भी बोलते हैं। ठीक है, नैक्सट लगाई उन्हें बोहर फ्रीकुएंसी कंडीशन। ठीक है, कहना मतलब यह है कि जदों भी जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो जंप करता है हायर एनर्जी लैवल तो लोअर एनर्जी लैवल दे विच ते जिहड़ी आ रेडिएशन एमिट होंदी है। ठीक है, मान लो जिहड़े EI है ओ ते EF ये एनर्जीज ने। ठीक है, जिन्हां दा प्रिंसीपल क्वांटम नंबर कितना है NI ते NF, I फॉर इनिशियल एंड F फॉर फाइनल, है ना। हुण जिहड़ा इनिशियल लैवल आ दैट इज़ हायर एनर्जी लैवल, हायर तो लोअर च जाना ना, मतलब EI माइनस EF करांगे। ठीक है, हायर तो एनर्जी जिहड़ी आ मतलब लोअर एनर्जी जो जाएगा। ठीक है, तो रेडिएशन एमिट होएगी जिन्ना इन्हां दोनों दे विच एनर्जी डिफरेंस होएगा, मतलब जिहड़े दो ऑर्बिट्स दे विच इलैक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन करनी है जां जंप करना है फॉल करना है वटएवर। ठीक है, तो जिन्ना उन्होंने दोनों च एनर्जी डिफरेंस होएगा उन्नी ही एनर्जी की रेडिएशन बाहर निकलेगी। सो उन्हें कंडीशन लगाती H न्यू इज़ इक्वल टू EI माइनस EF। नैक्सट आप करांगे बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन की होंगे 1 मतलब ये न्यूक्लीयस से चार्ज होएगा प्लस E तो इलैक्ट्रॉन ते चार्ज होएगा माइनस E, मतलब इसे कि इलैक्ट्रॉन तो एक ही प्रोटोन आ। सो Z कर लो चाहे N कर लो, एक प्लस ही आएगा तो एक माइनस ही आएगा। आप हाइड्रोजन एटम में डिस्कस करना है। ठीक है, हुण इन्हां दोनों च कूलम फोर्स कितनी होएगी, वी आर टेकिंग मैगनीट्यूड। ठीक है, हुण मैगनीट्यूड लवांगे फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E पहले तो चार्ज दूसरे ते भी चार्ज E डिवाइडेड बाय RN स्क्वेयर। N मैं इस करके लाया कि nth ऑर्बिट। ठीक है, और फोर्स के नाल भी मैं N लाता कि किहड़े ऑर्बिट का रेडियस आ वो N1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता। N मतलब आप जनरल केस लेना कि किनवा ऑर्बिट आ। ठीक है, तो उस हिसाब नाल फोर्स की वैल्यू भी जिहड़ी आ वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, हुण मान लो कि ये वाला जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ ये VN वेलोसिटी दे नाल मूव करता पिया। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फिर इलैक्ट्रॉन नूं कितनी चाहिए है मूव करने वास्ते, mv²/r। mv²/r होंगी है, n इस करके लगाया कि nth ऑर्बिट। हुण जिहड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स है कित्थों आई, किहदे तो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो। सो ये दोनों बराबर होंगे, इन्हां दोनों बराबर करो mvn² इज़ इक्वल टू E² सॉरी इधर RN भी आना, E² हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN², ये आ गया। सो इत्थों एक RN कटिया गया। सो तुहाडे को आ गया mvn² इज़ इक्वल टू E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। दिस इज़ इक्वेशन नंबर, इनू E² च चेंज कर ही लो। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। हुण अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, mvr इज़ इक्वल टू NH/2 पाई। ये कितना मैं इत्थे V नाल भी N लाता, R नाल भी N लाता। ठीक है, इत्थों VN की कितनी वैल्यू आ गई NH/2 पाई, M भी इधर नीचे चल जाएगा, R भी इधर नीचे चल जाएगा। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। साढ़े को वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। हुण आपां फाइंड करांगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उहदे लई आपां VN की वैल्यू जिहड़ी है इक्वेशन नंबर 2 च पुट करांगे। दसो कितना आएगा, इत्थे VN की वैल्यू पुट करनी है। आ गया पहलो M, VN की जगह पर की आएगा NH/2 पाई mRn² इज़ इक्वल टू E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। ये आ गया, करो स्केयरिंग, mn² h²/2 का स्केयर 4 पाई का स्केयर पाई² m² RN² इज़ इक्वल टू E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। देखो हम की कटिया जा रहा है, एक M गया, एक
RN भी गया, एक 4 ना 4 गया, एक पाई भी गई, की आ गया n स्केयर h स्केयर अपॉन पाई m RN इज़ इक्वल टू ई स्केयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हुण इत्थों आपां RN की वैल्यू कड्डांगे। RN की वैल्यू कड्ढण लई की करांगे, एप्सिलॉन नॉट नूं इधर लाओ तो RN नूं इधर लै जाओ। ये आ गया n स्केयर h स्केयर एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू पाई m RN ई स्केयर। सो इत्थों RN की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल n स्केयर h स्केयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ई स्केयर। ठीक है, ये तुहाडे कोल वैल्यू आ गई RN की, इक्वेशन नंबर 4। हुण जिहड़ी RN की वैल्यू है इह देखो, h स्केयर कॉन्सटेंट, एप्सिलॉन नॉट कॉन्सटेंट, पाई कॉन्सटेंट, m कॉन्सटेंट, ई स्केयर कॉन्सटेंट। सो दैट मीनस R इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू n स्केयर। R दैन जिहड़ा आ मतलब जिहड़ा ऑर्बिट होएगा, रेडियस उहदा जिहड़ा होएगा वो n स्केयर दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल आ। मतलब अगर n 1 है मतलब RN जिहड़ा उहदी रेशो वो आ गया 1, बाकी तो कॉन्सटेंट चीज़ां आ, बाकी कॉन्सटेंट नाल मल्टीप्लाई तो होएगा ही होएगा। जो तुसीं 2 पुट करोगे तो 4, 3 पुट करोगे तो 9। इहदा की मतलब है कि जिहड़ी रेशो आ रही है, ठीक है, रेडियस की RN 1 रेशो RN 2 रेशो RN 3 वो किहदे बराबर आ रही है 1 रेशो 2 सॉरी 4 रेशो 9। इहदा की मतलब है कि रेडियस के जिहड़े ऑर्बिट्स ने हाइड्रोजन एटम के उन्होंने रेडियस जिहड़े ने वो स्केयर दे नाल जिहड़े ने चेंज हो रहे हैं। दैट मीनस द ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। उन्होंने सारे ऑर्बिट्स के विच जिहड़ी स्पेसिंग आ वो कभी भी सेम नहीं होंदी। नैक्सट है बच्चे बोहर्स रेडियस। बोहर रेडियस हुंदा है रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनर मोस्ट मतलब N1। ठीक है, RN की वैल्यू कितनी है, कितनी RN इज इक्वल टू n स्केयर h स्केयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ई स्केयर। ठीक है, n की वैल्यू 1, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 वह भी स्केयर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, और उस तो बाद पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्केयर। जो तुम इनू सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा A0 के बराबर। कि मतलब जो आप सारिया जो जिथे आप n नू 1 पुट करता वो बोहर रेडियस हो गया A0। मतलब जितों n नू 1 पुट करन ते ये आंसर R0 जिहड़ा वो A0 च चेंज होएगा, सॉरी RN जिहड़ा वो A0 च चेंज हो जाएगा। A0 जिहड़ा वो बोहर रेडियस आ जिद्दां ही n नू 1 पुट करांगे, पर जो 2 पुट करांगे दैन इट विल बी R2 R3 दैट n ते डिपेंड करता है। ठीक है, R1 जिहड़ा वो A0 के बराबर होंदा। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर इनू आंगस्ट्रॉन्ग च चेंज करना है तो आएगा 5.29 इंटू 10⁻1 अलग कर लो, 10⁻10 मीटर अलग कर लो। सो इट विल बी 0.529 आंगस्ट्रॉन्ग। ये तुहाडे कोल वैल्यू आ गई बोहर रेडियस की। क्लियर बच्चे, नैक्सट आप करांगे वेलोसिटी। ठीक है, हुण साडे कोल RN की वैल्यू जिहड़ी सीगी वो आई n स्केयर h स्केयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ई स्केयर। ठीक है, साडे को RN की वैल्यू आ गई। हुण आपां जिहड़ी है इनू पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 3 इक्वेशन आ सीगी Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m RN। इनू आपां इहदे च पुट करना। ठीक है, सो करो पुट, RN की वैल्यू इत्थे पुट कर दो। सो Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m RN की जगह तो की पुट करांगे आपां n स्केयर h स्केयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ई स्केयर। देखो कि कैंसल हो रहा है, n एक गया, एक h गया, पाई m नाल पाई m गया। सो तुहाडे कोल Vn की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्केयर। ई स्केयर ऊपर चल जाएगा। सो Vn इज इक्वल टू ई स्केयर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट। हुण ई स्केयर कॉन्सटेंट, 2 कॉन्सटेंट, h कॉन्सटेंट, एप्सिलॉन नॉट कॉन्सटेंट, बचा n। सो Vn इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू n। जिन्ना ऑर्बिट वधाई जाओगे उन्नी स्पीड इलैक्ट्रॉन की घटी जाएगी। मतलब पहले च स्पीड ज़्यादा, दूजे च उस तो घट।
तीजे उस तो घट, चौथे ऑर्बिट उस तो घट, पंजवें ऑर्बिट उस तो घट, मतलब भी जिद्दां जिद्दां ऑर्बिट वधी जाएगा उदां उदां स्पीड जिहड़ी आ वो घटी जाएगी। ठीक है, नैक्सट आपां करांगे टोटल एनर्जी। जिहड़ी टोटल एनर्जी आ nth ऑर्बिट दे विच वो दो पार्ट्स च डिवाइड होएगी, काइनैटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिहड़ी काइनैटिक एनर्जी है वो तो हाफ mv² के बराबर है। काइनैटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज़ हाफ mv(n²). ठीक है, हुण इक्वेशन नंबर 2 देखो, इत्थे mvn² की वैल्यू दी है, इत्थे mvn² हैगा, सो हाफ उदां ही आ जाएगा। mvn² की जगह ते की लिखो e² अपॉन 4πε0 rn, ये तुहाडे को आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कढ़न वास्ते की करोगे, पोटेंशियल इंटू चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, ये मैं तुहानूं पिछे दस्सिया है वर्क डन किदां लाना। पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 E अपॉन Rn, Q अपॉन E करना है, हाइड्रोजन ते चार्ज कितना हुंदा न्यूक्लियस ते E, सो E अपॉन Rn इंटू चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन माइनस E, सो ये आ जाएगा तुहाडे को -1/4πε0 E² अपॉन Rn। इक्वेशन नंबर इनू मान लो 8, इनू मान लो 6, इनू मान लो 7। ठीक है, तो पुट 7 and 8 in 6। करो पुट, En के बराबर आए, काइनेटिक एनर्जी का की फॉर्म वैल्यू है 1/2 E² अपॉन 4πε0 Rn। पोटेंशियल की वैल्यू है -1/4πε0 E² अपॉन Rn। कॉमन की आ रहा दोनों चो, E² कॉमन, 4πε0 Rn कॉमन, हाफ इत्थे हाफ बचिया, इत्थे 1 बचिया। ठीक है, हाफ -1 माइनस हाफ, सो तुहाडे को आंसर आ गया -E² अपॉन 8πε0 Rn। अगर तुसी इत्थे Rn की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को Rn की वैल्यू सीगी वो मैं पुट करन लगी हाँ, -E² अपॉन 8πε0 Rn कितना ही n² h² ε0 अपॉन πme²। ठीक है, सो कुछ कैंसिल हो रहा है जो, बस पाई कैंसिल हो रहा, ये ऊपर चल जाएगा -E² me² ऊपर चल गया, थले बचा 8ε0 n² h² ε0। देखो हम की बनता है, En आ गया -m e⁴ अपॉन 8 n² h² ε0²। ये सारा कुछ कॉन्सटेंट है n² नूं छड्ड के। ठीक है, जो तुसीं इत्थे m की वैल्यू पुट करोगे -9.1 × 10⁻31, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19⁴ डिवाइडेड बाय 8 n² h 6.63 × 10⁻34 द स्क्वायर ε0 8.85 × 10⁻12 द स्क्वायर। देन व्हाट विल हैपन, चलो ठीक कर लेंगे हैं, की आएगा फिर तुहाडे को En की वैल्यू जिहड़ी आएगी वो आएगी -2.17 × 10⁻18 अपॉन n² जाउल, ये जाउल च आया। हुण 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट जिहड़ा आ वो 1.6 × 10⁻19 जाउल के बराबर हुंदा, सो आपां इनू -2.17 × 10⁻18 1.6 × 10⁻19 नाल डिवाइड कर देंगे, ये आंसर इलैक्ट्रॉन वोल्ट च आ जाएगा। ठीक है, सो तुहाडे को En जिहड़ा आ उहदी वैल्यू आ जाएगी -13.6 अपॉन n² इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, ये मान लो 9 हो गई, 10 हो गई, तो आ वाली इक्वेशन हो गई 11, ये आ गई तुहाडे कोल एनर्जी। ठीक है, हुण एनर्जी आ रही है नैगेटिव। ठीक है, जिद्दां जिद्दां ऑर्बिट वधी जाएगा उहदी जिहड़ी एनर्जी आ वो लैस नैगेटिव होंदी जाएगी। ठीक है, लैस नैगेटिव होना मतलब एनर्जी का पॉजिटिव होना। जिद्दां जिद्दां तुसीं n वधाई जाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ,
जिद्दां ਇਹਦਾ n ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ En ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, लैस नैगेटिव होने का मतलब पॉजिटिव ज़्यादा होना। ठीक है, सो नैगेटिव साइन की शो करता है कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ एक ऑर्बिट दे विच वो बाउंड हुंदा आ न्यूक्लियस दे नाल। नैगेटिव का यह मतलब है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कि जिहड़ा न्यूक्लियस दे नाल इलैक्ट्रॉन हमेशा जिहड़ा आ वो बाउंड हुंदा आ। न्यूक्लियस ते इलैक्ट्रॉन टोटल मिल के एक बाउंड सिस्टम बनाते हैं। ये उन्नी देर तक जो फस्ट इलैक्ट्रॉन च ऑर्बिट आ फस्ट ऑर्बिट च इलैक्ट्रॉन सॉरी तो की होएगा आंसर -13.6 आएगा। एन स्केयर नूं 1 पुट करो, आंसर कितना आया -30.6। मतलब ये इलैक्ट्रॉन जिहड़ा आ वो कितनी एनर्जी दे नाल बाउंड है -13.6 नाल। ते अगर तुसीं इलैक्ट्रॉन नूं फस्ट ऑर्बिट चों बाहर कढना आ तो तुहानूं 13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी देनी पेगी, बट ओपोजिट डायरैक्शन च, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, En जिहड़ा तुहाडे कोल आया -13.6 इलैक्ट्रॉन आया। पहले ऑर्बिट दे विच इलैक्ट्रॉन की एनर्जी इन्नी है, तो अगर तुसीं उस इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढना आ तो तुहानूं कितनी एनर्जी देनी पेगी, जिन्नी एनर्जी दे नाल बाउंड है उन्नी एनर्जी तुहानूं जिहड़ी आ वो देनी पेगी। मतलब -13.6 जिहड़ी आ वो देनी पेगी इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढण वास्ते, पर वो पॉजिटिव होएगी। ठीक है, नैक्सट आपां करांगे ऑर्बिटल पीरीयड। मतलब कितना टाइम लगदा एक इलैक्ट्रॉन नूं चक्कर लाउण वास्ते एक ऑर्बिट दे विच। ठीक है, सो टाइम पीरीयड कहते बराबर टाइम हुंदा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, उन्हें एक पूरा चक्कर लाना है, मतलब 2πr वेलोसिटी v, आर दे नाल भी n लगा दो, v दे नाल भी n लगा दो। सो मैं Rn की वैल्यू पुट करांगी। पहले मैं Vn की कर लेनी है। Vn की वैल्यू E² अपॉन 2n h/0। ठीक है, Rn की मैं हुण पुट कर लगी हाँ n² h² ε0 अपॉन πm E²। देखो t इज़ इक्वल टू 2π n² h² ε0 आ भी ऊपर चल जाएगा 2n h ε0 डिवाइडेड बाय थले बचा E² ते πm E²। हुण जो कैंसल होंदा वो कैंसल कर लो, बाकी लिख लो। बस मैनूं लगदा पाई कैंसल हो रही है, होर तो कुछ कैंसल नहीं हो रहा। ठीक है, सो देखो हुण की आ रहा 2 2 4 n देखो एक 2 आ ते एक आ, n का भी 3 हो गया, h का भी 3 हो गया, ε0 का स्केयर हो गया, थले आ गया m e दी 4। हुण 4 कॉन्सटेंट, h³ कॉन्सटेंट, ε0 स्केयर कॉन्सटेंट, m कॉन्सटेंट, e दी पावर 4 कॉन्सटेंट। ठीक है, सो दैट मीनस t इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब। मतलब जिन्ना ऑर्बिट वड्डा होएगा उन्ना टाइम ज़्यादा लगेगा चक्कर लाने में। ठीक है, तो हुण जे आपां फ्रीकुएंसी कड्ढीए, फ्रीकुएंसी किहदे बराबर होंदी है 1/t। सो फ्रीकुएंसी उल्टी हो जाएगी यदि, मतलब Vn इज़ इक्वल टू m e दी 4 ऊपर आ जाएगा अपॉन 4n³ h³ ε0 स्केयर नीचे आ जाएगा। सो मतलब Vn जिहड़ा आ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया n³ दे। मतलब जिद्दां जिद्दां ऑर्बिट वधेगा उदा उदा इलैक्ट्रॉन की जिहड़ी फ्रीकुएंसी है वो घटती जाएगी। जिद्दां जिद्दां ऑर्बिट वधेगा टाइम पीरीयड उहदा एक चक्कर लाउण दा ऑर्बिटल टाइम पीरीयड वधी जाएगा, बट उहदी फ्रीकुएंसी जिहड़ी आ वो घटी जाएगी। हुण अगर हाइड्रोजन लाइक एटम आ, ठीक है, हाइड्रोजन जिहड़ा आ उहदा ते एटॉमिक नंबर 1 हुंदा, पर जे मान लो आपां हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिहदी आउटरमोस्ट शैल दे विच 1 इलैक्ट्रॉन होवे, दैट इज़ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, सो उहदे ग्रुप दे एलीमेंट तुसीं लै सकदे हो। ठीक है, हुण Z हाइड्रोजन का तो 1 हो गया। नैक्सट जिहड़ा एटम आएगा हाइड्रोजन लाइक एटम उहदा एटॉमिक नंबर Z होएगा। फिर रेडियस कितना चेंज होएगा, HL का मतलब हाइड्रोजन लाइक, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज़ इक्वल टू RN अपॉन Z। मतलब RN का जिहड़ा भी फॉर्मूला होएगा उहदे डिनोमीनेटर च Z आ जाना। RN का फॉर्मूला किया ना हुणे हाइड्रोजन लाइक एटम च, RN का की फॉर्मूला किया है तुसीं n² h² ε0 अपॉन πm E²। तो मतलब फिर की आ जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम का रेडियस कितना आ जाएगा n² h² ε0 अपॉन πm E², ये नाल Z मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो जाती है, Z मल्टीप्लाई होएगा। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला की है E² अपॉन 2n h ε0, ये नाल Z ऊपर आएगा। मतलब एटॉमिक नंबर की यदि जी वेरीएशन तो एनर्जी के जिहड़ा हुंदा वो हुंदा
हाइड्रोजन की कितनी होंगी है -13.6/n², ये Z² उपर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, मतलब कि जिदा हाइड्रोजन च आप ई तो माइनस ही लैके किया ना, अगर आप उत्थे ई दे नाल Z मल्टीप्लाई लैके भी ये सारिया चीज़ां सॉल्व करिए दोबारा तो Z लैके ZE लैके, तो फिर तुहाडे कोल ये आंसर आएंगे। सो तुसी हाइड्रोजन लाइक एटम का याद करके तुसी देख लेना है कि रेडियस जिहड़ा आ वो Z नाल डिवाइड हुंदा है, वेलोसिटी Z नाल मल्टीप्लाई होंदी है, एनर्जी Z² नाल मल्टीप्लाई होंदी है। ठीक है, सो ये केस आ जाते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के जिन्हों का एटॉमिक नंबर Z आ। ये सी तुहाडा बोहर मॉडल, इनू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेनू चंगी तरह जिहड़ा आ 2-3 दिन जिन्ना भी टाइम है वो कंप्लीट कर लेना। क्लियर।